نمرود کی بیٹی کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زیادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث برسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ باحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، خداوند متعال نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمرود کا انجام بھی بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نمرود بڑے تنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ بلاد الزنا تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھے، اور نمرود وقت نصر، یہ دونوں کا نمرود نے پھر سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جہاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ اس کو اپنے متابعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلے گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے اور اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوس تو حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का बाद आल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रवादाद अपने लफ्जों में बयान फरमाई कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, उस पर के अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता है और मारता है। बोला मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने फरमाया तू अल्लाह तो सूरज को लाता है पूरब से, तू पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखलाता जालिमों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदाबंद की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह कायम रहे, ना के नमरूद की बेशुमार फौजों से गायब हुए, न उसके जुल्मों जबर से मरऊब हुए, बल्कि इस जालिम ने आपको आग के शोलों में डलवा दिया। उस वक्त भी आपके पाए अज़्मुल इस्तक़लाल में बाल बराबर लग़ज़श नहीं हुई और आप बराबर निम्रा तौहीद बुलंद करते रहे, तो उस बेरहम ने आप पर दाना पानी बंद कर दिया। उस पर भी आपके अज़्म इस्तकामत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया कि उसने आपको मुनाजरे का चैलेंज दिया और दरबार शाही में तलब किया ताकि शाही रोबो दाद दिखाकर आप अलैहिस्सलाम को मरऊब कर दे, लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मुनाजरे का चैलेंज कबूल फरमा लिया और दरबार शाही में पहुंचकर ऐसी मजबूत और दंदान शिकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का होकर लाजवाब और खामोश हो गया और भरे दरबार में इस कलमा हक की तजल्ली हो गई। बिल आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदाकत हकानियत का परचम सर बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर मखलूक से हलाक कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाकया मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत के खराबी का कहकर जाने से मादर कर लिया। दर हकीकत वो ऐसे ही मौका की तलाश में थे। चुनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हुए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े देवता के हैकल में चले गए। कौम का सबसे मुकद्दस देवता बातिल खुदाओं का सरदार माना जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए थे देवताओं के सामने फल खानों और मिठाइयों के खवान रखे हुए थे जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नजर किए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन मूर्तियों को मुखातब करके कहा, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातब हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े से उनको तोड़ दिया, लेकिन एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर चले गए कि रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुत खाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले जमीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया क्यों कर किसी को सजा दी जा सकती है। उस पर लोगों ने जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, नमरूद से कहा कि काम सिर्फ इब्राहिम का है। नमरूद ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा न दूंगा, जरूरत है कि इसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनाचे उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोब और वकार के साथ दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, तर्जमा कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उनसे कहा कि हमारे माबूदों के साथ ये काम तूने किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं
सकते। सूरतुल निसा आयत नंबर 58 تا 65। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल जहाँ साहबे कतार लोग हों और खुद नमरूद पर बिजली बन कर गिरा, वहाँ उस अमल से अवामुन नास के दिलों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रत और हौसले की दाद बैठ गई। मजहबी पेशवाओं ने पुररोब आवाज में पूछा है, इब्राहिम हमारे बुतों की तौहीन किसने की है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, हथौड़ा बड़े बुत के कंधे पर है, उससे पूछो ये सब किसने किया है? बजारे नदामत शर्मिंदगी से सर झुका के बोले, इब्राहिम तुम खूब जानते हो कि पत्थर की मूर्तियां बोलती नहीं हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते, अपने दफा नहीं कर सकते, तो तुम उनसे नफा पहुंचाने की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे मबूदों को पूजते हो कि तुम अक्लो शऊर नहीं रखते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर बुत परस्तों के अकायद पर ऐसी कारी जरब थी कि नमरूद ने अपने खुद साख्ता खुदाई को जमीन बोस होते हुए देख लिया। नमरूद चलाक आदमी था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ इब्राहिम तू अपने बाप दादा के दीन की मुखालफ क्यों करता है? तो मुकद्दस बुतों को मबूद मानने से क्यों मुनकर है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा ने ये तो अपनी सलामती और इबादत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परतश लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा बस बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में न हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत व हयात पर कादर है। नमरूद बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्ज कुदरत में भी है। उसने एक कैदी को जिसकी मौत की सजा का हुक्म हो चुका था जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मारने का हुक्म सादर कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर जर्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म से हर रोज मशरक से निकलता है और मगरब में डूब जाता है। तू सूरज को मगरब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के कायद की तकजीब ने वाने नमरूद में दरारें डाल दी और बाबे इक़्तिदार ने शोरो गोगा बुलंद किया कि इब्राहिम हमारे देवताओं की तौहीन का मर्तकब हुआ है और बाप दादा के मजहब को जुटलाता है। इसकी सजा ये है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती करने की हिम्मत न हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम न होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शफा हो गई, ये मेरा काम मुकम्मल हो गया, तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। अजाबुल कसास अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल बफ्ती सफा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके लोहे वाले तंदूर में बंद करा दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दिया। काफी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो जैसे कि वो तैसे थे, यानी उनको कोई गजन उस आग से ना पहुंचे। नमरूद ने हुक्म दिया, इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए, उनको खत्म करने का कोई और हाल तलाश किया जाए। चुनाचे एक रवायत की बिना पर 40 दिन और एक रवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और इस दौरान इन्हें नजरे आतिश करने का फैसला किया। बारवायत महाराज नबूवत नमरूद ने बामकाम कूसा जो कूफा में एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी लंबाई 4 फरकस और चौड़ाई 4 फरकस थी। उसकी बुलंदी 100 गज थी और बारवायत रोजातुल सफा उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारें मुकम्मल हो गयीं तो उसने हुक्म दिया कि उसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रवायत में कि ये 4 दीवारी एक माह में पूरी की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब उसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों ये आलम पैदा कर दिया कि कोई
قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضا بالا تک اس پر سے گزر نہ سکتا تھا۔ تبری میں کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے، اس میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی راستہ ایسا نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس میں پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنیق ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی توق آہن ڈالا گیا، پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کر کہا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لاک الحمد و لاک الملک۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ایک روایت میں ہے اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک، تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے۔ حکم ہوا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ فرشتے ہوا نے کہا، آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا، اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا، وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، ابراہیم، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا، سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ پہنچے، پھر نیچے کی طرف آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمانے باری تعالیٰ آگ کو پہنچ چکا تھا۔ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ صدیقہ بیان ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا، ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرجش کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلور کا ایک تخت بچھا کر ان پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور گرد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گیا تھا، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت میں گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جلد بھن کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ آپ کو یہ آگ نہیں جلا سکی اور آپ صحیح سالم برآمد ہوں گے تو لازم میرے لیے اور زیادہ مضر ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بڑے بڑے پتھر اس رات میں پھینکے گئے۔ وہ پتھر باروایت عجاب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور باحکم خدا بادلوں کی صورت
इख्तियार कर गए, बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में उसी हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग इस तवील चार दीवारी में थी, सब बुझ गई। अल्लामा मस्जिद तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो मंजनीक बनाई गई थी वो वही थी जिसमें रखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये मंजनीक मकाम कूसा में, जो कूफा के एक गांव कंजारा में वाक़या है, शैतान के हाथों बनी थी। उन्होंने हयातुल कलूब के सफा नंबर 90 में तहलील फरमाया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांध कर मंजनीक में रखा तो उनके चाचा आजर, जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके रुखे मुबारक पर एक तमाचा मारकर कहा, अब भी अपनी हरकत से बाज आ जा और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदा है खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी और उसी की तस्लीम शुदा है, ये ना खुदा है ना उसकी खुदाई मानी जा सकती। एक हदीस में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और उसमें ठंडक आ गई थी। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो उस आग की ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल एक बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुले गुलजार बन जाने की सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से ज़ाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। अल्लामा इब्ने कसीर कससुल अंबिया में तहरीर करते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सईद बिन मसीब से मरवी है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के सुपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इस्तलाब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज्यादा बरक रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। इन नाजुक लम्हात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। आप अलैहिस्सलाम की जबीन अतर पेशानी से पसीना पूछ रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आपको नहीं पहुंची। हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज आग से तपशो गरमाइश खत्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजीद फरमाया कि इस रोज आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और न जलाया। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सर सबज बाग गुलो गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो आजर ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते हुए कहे। उसका तर्जुमा है, ऐ इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इब्ने असाका रहमतुल्लाह अलैह हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अपने लख्ते जिगर को गोलो गुलजार ने यूं मुतमय्यन देखा तो पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करके तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे नजात दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानब चली और आग ने उन्हें कुछ न कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले लगाया और बोसा देकर वापस लौट आई। हजरत मनहाल बिन उमरू से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां गुलो गुलजार में 40 से 50 दिन ठहरे। उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उससे अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम जिंदगी इसी तरह की हो जाए। कफारो मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे मगर जलीलो रसवा हो गए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्तो खवार हो गए। गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। कससुल अंबिया अल्लामा इब्ने कसीर सफा 168-169। शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इश्क, हकीकत
बारीकी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अकल है इश्क अकल बेमहब तमाशा लब बाम भी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाकया और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मौरखीन ने लिखा है। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाकया कुर्राए अर्ज का एक कुर्बनाक सान्या था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जिन इन सब के दरमियान हुआ। इस मौका पर एक रवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाकये का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौका पर छोटे परिंदे भी अपने इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच जो पानी भर के लिए ठंडी हो सके, उसी मौका पर यही छिपकली थी जो इस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रवायत के मुताबिक एक सहाबी फकीहा बिन मगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आजाद करदा गुलाम औरत जब बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गई तो उन्होंने वहां एक नेजा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया, इसका क्या मकसद है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने आग को भड़काने की कोशिश की थी। हजरत फाकिया बिन मगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आजाद करदा लौंडी साहिबा से रवायत है कि सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक नेजा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम इससे छिपकलियां मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जमीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ थे सवाए छिपकली के। वो आग को तेज करने के लिए फूंके मारती थी, चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। सुनन अबी माजा हदीस नंबर 3231, सुनन मसनद अहमद हदीस नंबर 6504। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अकवाल हैं। बाद मुफस्सरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। मौरखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाकयात और उनके दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचाजाद भाई थे और जनाब सारा चाचाजाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतल्लिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बाहवाला मार्जुल नबूवत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी ज़ैरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि उसे इस मनार पर जाने की इजाजत दी जाए, जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनाचे नमरूद ने इजाजत दे दी और वो इस मनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग गुले गुलजार बन गई और बलोर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दी, ऐ इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ऐ इब्राहिम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतर कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान न पहुंचाया और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाकया मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया, फिर उसने जिद की और डराया, मगर उसने परवाह न की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे
उसे धूप में लटा कर और उसके हाथ और पांव में मीखें ठोक दी। इधर जलादों ने उसे सजा दी, उधर खुदावंद ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहिम तक पहुंचा दो। ये वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो उन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मदीन के साथ कर दी, जो कि सारा हाजरा के अलावा कतूरा बीवी से था। फिर खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अंबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो भी इसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवाए हसना से उलमाए हक को सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म की खौफो हरास और तकलीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमानो यकीन रखना चाहिए कि जरूर नुसरत खुदाबंदी हमारी इमदादो दस्तगीरी बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही फतहमंद होंगे और बातिल परस्त यकीनन खाइबो खासर होकर हलाको बर्बाद हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तर्जो फिक्र अमल आपका ये उसवाए तमाम हक परस्त आलमों के लिए चिरागे राह है और हकीकत ये है कि आपके उसवाए हसना पर अमल करने वाले जरूर कामयाबी से हमकनार होंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।